Namaskar. I am honestly asking all of you, are you feeling tired? Please let me know. Because realizing the condition of yours, I'll have to make my speech relevant to the situation. अगर आप सुनने के लिए तैयार है तो मैं बोलूं. Respected Senior Minister from the State Government of Assam, Sri Parimal Saklabadya ji, respected Senior Minister from Assam, Bimal Boraji, respected Minister from Arunachal Pradesh, Mama Natung ji, respected MLA and advisor, the Government of Nagaland, Temjen Menbaji, respected Secretary Minister of Port Shipping Waterways, T.K. Ramachandran ji, respected Chairman National Shipping Board, Sanjeev Ranjan ji, respected Chairman Inland Waterways Authority of India, Sanjay Bandyopadhyay ji, respected Muhammad Manwar Oz Jaman ji from the Government of Bangladesh, respected Mr. Purpa Tishing ji from the Royal Government of Bhutan, His Excellency Rahul Aminji from the Government of Bangladesh, and the official from the Government of India, and also the Government of Bangladesh and Royal Government of Bhutan, and also the state governments of Northeastern region, respected businessmen, ladies and gentlemen, and my media friends. Global Maritime India Summit 2023. For this particular event, we are organizing this beautiful roadshow, mainly to draw the attention of all of you. Please come forward, take part in the forthcoming this global event based on maritime industry, maritime trade. And that is why we have extended our invitation to all the leading maritime nations of the world. All the maritime nations, whoever have been registered under International Maritime Organization, they have been invited to take part, as we did earlier in the two occasions, 2016 and 2021. We got tremendous response, and out of the involvement of those nations under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, whatever exemplary transformation have taken place, you have all seen it, witnessed it, experienced it. I need not have to elaborate on this. Whatever growth we have achieved so far through the maritime trade, it is unique, and which has, I believe, given an important contribution to the growth of Indian economy and positioning India on the 5th largest economic position in the world. And that is why Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has always been inspiring us, telling us time and again and giving us specific direction by way of launching many more projects. The project like Sagarmala program. This program has given lot of
scope for the private players to take part, and also the modern technology to be incorporated into the entire proceeding. In this particular program, Honorable Prime Minister has directed us that all the port of India must be modernized with the incorporation of modern technology, advanced technology, innovative technology, and make all the port globally standard and competent and performing. Then he has also directed us to develop the industrialization close to the port-led industrialization. Industry should not be located far from the port. Let all the export-oriented goods should be manufactured close to the port, so that there will be no hurdles in the communication and connectivity, so that the growth can be expedited, growth can be made faster. The third, port-led connectivity enhancement. All the mode of connectivity, whether it is railway, road, all other related line departments should well incorporated into the port operational system, so that the user of the port have better access to all kind of the principle adopted by the government of India, ease of doing business, ease of handling the cargo. Then coastal community development. The whoever is residing on the coastal area, right from Gujarat to West Bengal, this side western coast, that is Arabian Sea, eastern Bay of Bengal, 7,500 kilometers. Coastal community development and holistic development of coastal district. All this kind of program has been incorporated, and in the last almost this Sagarmala program was launched in 2015, isn't it? And so far we have crossed 9 years time. 16. Then from 16 to 2023, how it is almost 8 years. 8 years time, several kind of thousands youth have been skilled through modern institutional mechanism and given the skill of the maritime business handling, maritime trade handling, maritime industry handling, port operation, all kind of relevant subject has been well put into the mechanism of training system. And as a result, they have been empowered, they become efficient enough to be an entrepreneurship and also to be a good employer and also efficient enough to get the employment. So this is how the ecosystem have grown up. And the last point, coastal and inland waters transport. The coastal, whatever coastal area we have, the coastal shipping should be enhanced, and also inland waterways, whatever available inland waterways we have in the country. So far, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, 111 rivers have been recognized as the national waterways. Considering the feasibility of those river systems, and as a result, huge kind of ecosystem in the waterways have come up, and as a result, the outcome of the entire approach, entire exercise was to make India self-reliant in many sectors, give lot of confidence to the business houses, stakeholders involved into these maritime industry sectors. So I believe this is how India is growing faster.
India is now, you can consider it one of the fastest growing maritime nation in the world. आप हाथ ताली नहीं लगाएंगे क्या? इसलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में यही सवाल की थी. आप तो थके नहीं. अगर थकन पकड़ लिया तो हाथ चलता नहीं. हाथ चलता नहीं, कुछ नहीं चलता. अरे देश का इतनी बड़े विकास की एक खबर मैंने आप लोगों को दी, तो एक मुझे लगता है कि ये हमारे सबके लिए बड़े गर्व की बात है. देश के हर नागरिक को आज जिस हिसाब से मनोबल मिली है, जुनून, ताकत पैदा हुई है, वो भी संभव हुई है परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व ने आज हमें ऐसे उजागर की है, ऐसे शक्ति दी है, जिसकी वजह से आज हमें लगने लगा है वी कैन विन द वर्ल्ड. हम दुनिया को जीत सकते हैं. हमारे काबिलियत हर सेक्टर में हम लोगों ने दिखाने में सफलता प्राप्त की है. तो इसलिए मैं ही चाहूंगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट और पड़ोसी हमारे जो दोस्ती जो जमाने से सदियों से है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, हम चाहेंगे यही कि वो भी इस ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में भाग ले. और हमारी जो भी बिजनेस हाउसेस है, पोर्ट ऑपरेटर्स है, आप लोगों का पास जो अनुभव है, क्रूज ऑपरेटर है, एमबी गंगा विलास की हमारे राज सिंह जी बैठे हुए हैं, और फुकन साहब भी है. कहां है फुकन साहब? हाँ, फुकन साहब, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद. क्रूज इंडस्ट्री को आज जो ताकत मिली है और इसके जरिए जो रोजगार संभव हुई है देश में, क्योंकि हम अपने जलमार्ग को सही उपयोग करें, सही इस्तेमाल करें, खुद के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए. तो मुझे लगता है कि आज हमारे एक्जिम, ट्रेड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कोस्टल शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज, कार्गो वेसल, पैसेंजर वेसल एंड क्रूज वेसल्स to have seamless movement in our available waterways. और इसलिए इस बार भी जैसे आप लोगों को मालूम हुई है कि हर कदम जो भी उठाए गए हैं इन दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमने जो सफलता प्राप्त की है. अब देख लीजिए G20 प्रेसिडेंसी, सिंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हर इंटरनेशनल इवेंट में जो हिंदुस्तान ने शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है. और आज हिंदुस्तान का विविधता जो है, जहां ताकत बैठा हुआ है, जहां शक्ति बसा हुआ है, जहां खूबसूरत, जहां नजरिया है, जहां मनोबल है, तो ऐसे ही एक दृश्य G20 प्रेसिडेंट के जरिए इस प्रेसिडेंसी में जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत की गई है, 200 इवेंट इन द 60 लीडिंग सिटीज ऑफ द कंट्री, जिस हिसाब से आयोजन की गई है, तो आज दुनिया ने हिंदुस्तान को आविष्कार की है. हिंदुस्तान की हजारों साल की खूबसूरत हमारी सभ्यता, संस्कृति का जो आध्यात्मिक परंपरा का जो मूल्य है और हमारे देश का जो खूबसूरत नजरिया है, इनको आज दुनिया ने आविष्कार की है. 200 से अधिक अलग अलग स्थानों पे सभा अनुष्ठित हुई है और हर प्रदेश, हर केंद्र शासित इलाका में आज G20 समिट होने के वजह से आज हमारी 140 करोड़ आबादी भरा ये देश को दुनिया ने देखा है और उन्होंने बड़े आनंदित होकर हिंदुस्तान का गुणगान किया है. तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अगले दिनों में इसी शक्ति को आगे बढ़ाना होगा, इसी शक्ति को आगे बढ़ाना होगा. तो इसलिए
जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 होने जा रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि हमारी नई पीढ़ी यहां भाग ले, और आप लोगों को भी, आप अनुभवी एक खिलाड़ी होने के नाते आप लोगों को भी हमारी नई पीढ़ियों को अनुभव जगाने के लिए आप लोगों को भी कदम उठाना होगा, सबका प्रयास। क्योंकि हम ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के जरिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य एक ही है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हर कार्यक्रम में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यही सोच रहे, दुनिया को हम कैसे एकत्रित करें, दुनिया की मानव समाज को कैसे हम बड़े खुशी से जीने के लिए एक माहौल पैदा करें। तो इसलिए एक ग्लोबल जो भी डेस्टिनेशन, जो भी विजन रखा गया है, तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ बिजनेस ही नहीं करेंगे, बिजनेस का साथ साथ इंसानियत का भावना शक्तियों को हम विशेष रूप से मान्यता देंगे। बिजनेस तो होगा, लेन देन होगा, आदान प्रदान होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, साथ साथ में जब भी हम दुनिया की 100 से अधिक मैरीटाइम नेशन एक साथ एक ही मंच पे भारत मंडपम, जो हमारे प्रगति मैदान का नया नाम प्रधानमंत्री ने जो दी है, भारत मंडपम, उसी स्थान पर हम जब एकत्रित होंगे तो दुनिया की लिए हर नेशन अपना चिंता व्यक्त करेंगे। क्योंकि आज जो ग्लोबल डेस्टिनेशन, जो टारगेटेड डेस्टिनेशन हमारे सबके लिए रखे गए हैं, क्योंकि दुनिया को जोड़ना है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कदम उठाए, चाहे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, किसके लिए ये प्रस्ताव उन्होंने यूएनओ की जनरल असेंबली पे क्यों रखा? इसलिए रखा कि योग के जरिए दुनिया के मानव समाज को निरोगी रखना होगा, सुस्वास्थ्य रखना होगा, तंदुरुस्त रखना होगा, और योग के जरिए हम मानव समाज को जोड़ना होगा, समाज को मजबूत करना होगा। यही तो सबसे बड़ा इंसानियत का धर्म है। ये काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है। तो इसलिए हमें दिशा स्पष्ट मिली है, सफल बनाना ही होगा। और आज मुझे अच्छा लगा, बांग्लादेश, भूटान और हमारे जो भी नॉर्थ ईस्ट की 8 प्रदेश, हमारे माननीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश से है, एमएलए साहब है, नागालैंड से सीएम का प्रतिनिधि बन के आए हैं, और हमारे अलग अलग सिक्किम का हो, मणिपुर का हो, मिजोरम का हो, हर प्रदेश से, त्रिपुरा हो, हर प्रदेश से अधिकारी लोग आए हैं। मैं सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की हमारे जनप्रतिनिधि का साथ साथ हमारे जो भी अधिकारी आए हैं, सबको मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और हमारे बांग्लादेश और भूटान से आई हुए माननीय प्रतिनिधि को मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और स्वागत भी करता हूं। अच्छा, यहां मुझे एक सवाल करनी है, आपको अगर बुरा ना लगे तो। मैं आप लोगों को विशेष रूप से, यहां हमारे बीच परम आदरणीय महिला कोई बिजनेस हाउस है, कोई महिला इस सेक्टर में, मैरीटाइम सेक्टर में जुड़े हुए कोई एनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है क्या? है कोई है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अंतरा जी है हमारी सेक्टर में, लाइक रिवर क्रूज में अंतरा जी है। मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि महिला भी आगे आए, क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण के सिलसिले में जो भी सफलता हमने प्राप्त की है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, हर सेक्टर में आज महिला ने अपनी शक्ति दिखाने में सफलता प्राप्त की है।
इस सेक्टर में भी आप आ जाइए, हम चाहेंगे कि वो भी आए और भागीदारी बने। जन भागीदारी, जन आंदोलन। देश के अंदर जन भागीदारी अगर सब देशवासी बन जाए तो जन आंदोलन हो जाता है, और जन आंदोलन होता है तो इसका सभी दूर दूर से लोग देखने लगता है। इसका रोशनी दुनिया के अलग अलग प्रांतों पर चले जाते हैं, जिस रोशनियों से लोगों को मनोबल मिलता है, साहस मिलता है, जुनून मिलता है और शक्ति मिलता है और सकारात्मक सोच मिलती है। सकारात्मक सोच बहुत बड़े गुण होते हैं। अगर हमारे मन सकारात्मक, अगर पॉजिटिव रहे तो हम किसी भी माहौल पे अपने आप को संभाल सकते हैं। तो उसी दिशा पर हमें चलना होगा। मुझे नहीं ज्यादा बोलना है, मुझे मालूम है आप लोग थके हुए हैं। लंबे समय तक अपने भाषण सुनते सुनते मैं भी कभी कभी बैठता हूं ना आप लोगों का जैसे बीच में, तो लंबे जब सभा चलते हैं 2-2.5 घंटा भाषण सुनते सुनते तो थकान पकड़ लेते हैं। तो इससे बचने के लिए 5 मिनट का योगा है। इससे बचने के लिए हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से हमने 5 मिनट्स का वाइब्रेक ऐप ऐसा डेवलप की है। सिर्फ 5 मिनट का आसना, प्राणायाम और ध्यान अपने जगह जगह जहां आप बैठे हैं वहां आप कर सकते हैं 5 मिनट का। तो क्या होगा, डिस्ट्रेस होगा, थकान को भगाएगा, वो रिफ्रेश होगा, अंदर में सिर्फ जुनून पैदा होगा, उत्साह पैदा होगा और अपने काम में रिफोकस होगा। ये 3 शक्ति मिलते हैं। डिस्ट्रेस, क्या बोला, डिस्ट्रेस, रिफ्रेश एंड refocus. These are the 3 important achievements you could extract out of practicing 5-minute yoga in your office room or in your location wherever you are working, even sitting in your chair. This is the tricks we have given to the human world. It is possible only through our dynamic Prime Minister Narendra Modi ji. तो इसलिए दुनिया ने आज इसको पकड़ लिया है। Body, mind and soul, when it is get integrated holistically, then you become powerful, fresh and energetic and beautiful by mind and action and thought. ठीक है, मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत से आज सभा को आप लोगों ने संचालन करने के लिए जो भी सहयोग की है, पत्रकार बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। আপোনালোকলৈ बहुत बहुत धन्यवाद। আৰু নিশ্চিতভাৱে আজি অসম চৰকাৰ, অৰুণাচল চৰকাৰ আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ জনপ্ৰতিনিধি আহি, মাননীয় মন্ত্ৰীসকলে আহি যিখিনি সহায় কৰিলে, ভূটান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু বাংলাদেশ গভৰ্ণমেণ্ট, বাকী অন্যান্য ৰাজ্যৰ আৰু 3গৰাকী আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া, আমাৰ টিকে ৰামচন্দ্ৰন ডাঙৰীয়া আৰু বন্দ্যোপাধ্যায় ডাঙৰীয়া আৰু সঞ্জীৱ ৰঞ্জন ডাঙৰীয়া, আমাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ 3গৰাকী জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু সকলো ইয়াতে অন্যান্য বিষয়া সকলো আছে। মই পোৰ্ট শিপিং ৱাটাৰৱেজ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিকতাৰে कृतज्ञता और धन्यवाद जनाइछु। मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, पोर्ट शिपिंग वाटरवेज भारत सरकार की तरफ से आप सबको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए और नॉर्थ ईस्ट को देखिए बड़े तेज से विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल निरंतर उन्होंने जो सहयोग की है, जो आशीर्वाद दी है, जो उन्होंने मार्गदर्शन दी है, इसके लिए मैं एक नॉर्थ ईस्टर्नर होने के नाते, नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए हूं, नॉर्थ ईस्टर्नर होने के नाते नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेश की तरफ से, जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और उन्होंने आज नॉर्थ ईस्ट को दुनिया में अपना पहचान बनाने के लिए उन्होंने ही मौका दिया है। तो इसलिए वो हमेशा हमारे लिए आदर्श एक नेता है, आदर्शवादी नेता है। और साथ साथ में मैं फिर से सभी यहां पार्टिसिपेंट को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आई कंक्लूड माई स्पीच। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर event will inspire us
to get well connected with the forthcoming most important event, Global Maritime India Summit 2023. Thank you. Jai Hind!